evolved at that time. Now the today's topic is about armament and disarmament. This is another technique for achieving balance of power. The question is, what is armaments? Armaments किसे कहते हैं? और अगर आपको armaments के बारे में इल्म हो जाता है, so you can see that disarmament would be the opposite of armaments, क्योंकि ये उसका negative word है, ये armament का opposite है. तो armament का मतलब होता है असलहा साजी, असलहा लेने की जद्दोजहद. When the states are in an arms race, when the states are in a weapons race, जब रियासतें असलहे के लिए जद्दोजहद करती हैं और उनमें असलहे की एक दौड़ लग जाती है, इसे कहते हैं आर्मामेंट्स. आर्मामेंट्स में एक स्टेट अपनी फौजों की तादाद में भी इजाफा कर लेती है, उनके एक्सपेंडिचर्स में भी इजाफा कर लेती है और इस तरह उनके जो वेपन्स हैं उनको भी ज़्यादा कर लेती है, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव किया जाता है. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय आर्मामेंट्स. डिसआर्मामेंट इसका अपोजिट है, जिसमें एक स्टेट अपने फौजों में तखफीफ कर लेती है, अपने फौजों में कमी कर लेती है, अपने डिफेंस बजट को कम कर लेती है और जिसके नतीजे में वो आर्म्स और वेपन्स की रेस से भी अपने आप को बाहर निकाल लेती है. सो दीज आर अगेन सम ऑफ द टेक्निक्स फॉर अचीविंग बैलेंस ऑफ पावर. इसकी वजह यह है कि अगर एक स्टेट ज़्यादा पावरफुल है और उसके मुकाबले में जो उसका नेबर है वो एक वीक स्टेट है, वो इतना पावरफुल नहीं है, तो वो अपने आप को कैसे पावरफुल बनाएगा? लाजमी बात है वो असलहा हासिल करने की कोशिश करेगा, वो वेपन्स हासिल करने की कोशिश करेगा, वो अपने आप को जो मज़ीद जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी है उसको हासिल करने के लिए तगोदो करेगा और स्ट्रगल करेगा. सो दिस मीन्स that weaker state, when it tries to get arms, when it tries to get weapons, so due to acquiring weapons and improving the quantity and quality of weapons, it will be getting stronger and stronger, and a situation would arise when the power would be balanced between the two states. So armament is one of the technique by which a state can increase its power to bring it at par with the other stronger state. Balance of power can be achieved through armaments by which a weaker state may become powerful. Example आपको जर्मनी की दी है. After World War I, remember Germany power was weakened. Germany power was destroyed by the victorious states. उसके बाद क्या किया? जर्मनी क्योंकि कमज़ोर हो चुका था, तो उसके बाद उसने ऐसी स्ट्रगल शुरू की कि जिसमें वो असलहे को हासिल करता रहा. उसने डिफेंस बजट को इंक्रीज़ कर दिया, अपने फौजों को इंक्रीज़ कर दिया, अपनी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वेपन्स को मज़ीद इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से जर्मनी कुछ सालों के अंदर इतना पावरफुल बन गया कि अगेन इट वाज रेडी फॉर another war, which was World War II. So you can see that how a weak Germany after World War I get itself powerful through this armed struggle and prepared itself for World War II. And similarly, the colonies that got independence acquired arms for national security and neighboring threats. वर्ल्ड वॉर II के बाद आपको जिस तरह इल्म है कि बहुत सी रियासतों का वजूद आया, जो बहुत से नो आबादियाती निज़ाम कायम हुआ, जिसमें जो कॉलोनिस्ट थे they start getting independence from the European countries, but because they were newly independent countries, so they were weak. How they would get themselves strong? So for this, they started armaments, they started acquiring weapons, they started increasing their armed forces, and as a result they start getting stronger and stronger. Examples आपकी पास सबसे जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो इंडिया और पाकिस्तान की है कि they were weaker states during independence, but through their armaments and through their acquiring of weapons and improving their quality and the quantity of weapons, they are now big powers in the regions. So this is how armaments made them powerful, but they were acquiring weapons
Also, as a result, they were also balancing the power of each state. अगर इंडिया अपनी पावर को मजीद बढ़ाता और पाकिस्तान आर्मेमेंट्स नहीं करता, अपने लिए आर्म्स को एक्वायर नहीं करता, वेपन्स को एक्वायर नहीं करता, तो वो एक वीक स्टेट बन जाता और जिसकी वजह से इंडिया को फ़ायदा होता और वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करके उसको वापस अपना एक हिस्सा बना देता. But this armament race balanced the power between the two states, and as a result, the peace is prevailing in South Asia. इसी तरह नॉर्थ कोरिया है, इस तरह एग्जाम्पल चाइना की है कि आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस they start getting weapons, they start getting arms, and as a result they increase their power and bring them at par with the other states. In the picture you can see how the two images are depicting the arms race. एक तरफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हेनरी ट्रूमन है और दूसरी तरफ रशियन प्रेसिडेंट जोसेफ स्टालिन का एक इमेज है. And they are with the arms and they are trying to balance the power by putting their weapons in the balance. And as long as there was balance between the two superpowers, there was peace. But arms race at present may lead to destruction due to deadly effect. Arms race also leads to wastage of resources and economic backwardness. Remember, ये जो आर्मामेंट्स है ये किसी मुल्क के लिए मुफीद हो सकता है उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है. वो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जब कोई स्टेट आर्म्स हासिल करता है, when it increases its budget, its military budget, and it has a non-ending race of weapons, remember it would finally lead to destruction. क्योंकि एक स्टेट आखिर कब तक असलहा हासिल करेगा, कब तक असलहे के अंबार बनाएगा, ज़्यादा असलहा भी ख़तरनाक है और जिसकी वजह से जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो मिसयूज़ हो रहे हैं. वो पैसे जो कि आर्म्स हासिल करने में और मिलिट्री स्पेंडिंग पे खर्च हो रहे हैं, अगर उसको रोका जाए तो दिस कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल एक्टिविटीज़. This money can be used in different types of humanitarian activities and social works and for the welfare of people. लेकिन अब वो पैसा डिफेंस पे जा रहा है, वो पैसा असलहे की दौड़ पे जा रहा है, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेशन रेट कंट्री में डेवलप होता है और जो कि बढ़ता जाता है और जिसकी वजह से सोशल सेक्टर पीछे रह जाता है. इसी के साथ ये जो आर्म्स रेस है ये ख़तरनाक भी है क्योंकि these weapons are very deadly, they are very dangerous. They are not only threat to that country but also threat to the world peace. क्योंकि जितना आप असलहे के अंबार बढ़ाएंगे, जितना आप न्यूक्लियर हथियार और एटम बमों से अपने कंट्री को लैस करेंगे तो वो उस मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है. Therefore, this race should be stopped. And as a result, there was concept of disarmaments. Disarmament means that the country reduces its spending on military. It reduces its armed forces. It starts reducing its arms race and acquiring of weapons. And therefore, the states do it in such a way. They disarm themselves in such a way that still the power is balanced. तो यहाँ पे भी कुछ कंसेप्ट आ रहे हैं कि इवन अपने असलहे को कम करना भी यू कैन ईजिली डिक्रीज द पावर ऑफ अ स्टेट एंड ब्रिंग इट इन बैलेंस विद अनदर वीकर स्टेट्स. द स्टेट्स disarm themselves and reduce the quantity of weapons through mutual agreement to maintain balance of power. For example, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ने और सोवियत यूनियन ने आपस में एग्रीमेंट के ज़रिए किया कि उनके पास ये जो असलहे के अंबार बन गए हैं और उनके पास ये जो इतने ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार और सोफिस्टिकेटेड टाइप्स ऑफ वेपन्स मौजूद हैं, सो दे आर threat to the world peace. How they would get rid of these kind of weapons and still have the balance of power. And for this, they through mutual agreements, they through mutual talks
उन्होंने ये फैसला किया कि अगर वो अपने ही आर्म्स को, अपने ही इन पेचीदा हथियारों को कम कर दें और ऐसे कम कर दें और ऐसे उनको तलफ कर दें कि अल्टीमेटली उनके पास जो उनकी पावर इक्वेशन है वो अगेन बैलेंस्ड रहे. So this would be the use of disarmaments, which is reducing the weapons but still maintaining balance of power between the two states. So this was happened, and we would do different examples of it in the next paragraph. But the disarmament effort was introduced in the Treaty of Versailles, and then the League of Nations also recommended arms regulation. तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है, इट वाज साइन बिटवीन द वारिंग स्टेट्स दैट टुक पार्ट इन द वर्ल्ड वॉर वन, एंड दे म्यूचुअली अग्रीड दैट आर्मामेंट रेस इज नॉट हेल्थी फॉर द वर्ल्ड पीस, एंड देयरफॉर एक्वायरिंग आर्म्स शुड बी रेगुलेटेड. असलहे की जो दौड़ है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको वॉच किया जाए. और लीग ऑफ नेशन ने भी यही रिकमेंड किया कि ये जो असलहे की दौड़ है इसको कंट्रोल किया जाए, इसको रेगुलेट किया जाए. एंड सिमिलरली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू देयर वर मेनी एफर्ट्स दैट वर मेड फॉर डिसआर्मामेंट, स्पेशली न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसमें ये कुछ नाम आपको नजर आ रहे हैं जिसको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे. लेकिन इसमें ये जो कुछ नाम है, जिस तरह साल्ट 1 है जिसको स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, इसी तरह स्टार्ट के एग्रीमेंट्स हैं विच स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, एंड देन वी हैव NPT न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंड देन वी हैव CTBT विच मीन्स कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी. और इस तरह बहुत से टॉक्स हुए हैं विच वर एम्ड एट डिसआर्मामेंट्स, किस तरह दुनिया को इन केमियावी हथियारों से, इन हयातियाती वेपन से, और ये जो रेडियाई हथियार हैं, सो ऑल दिस काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, रेडियोलॉजिकल वेपन्स, chemical weapons, biological weapons, so they should be reduced, and the missile technology should be reduced. The deadly missiles should be destroyed in such a way that power is balanced between the states. So this was again an effort that was achieving balance of power. And similarly, when Iraq was increasing its power in the Gulf region in 90s, तो उसकी पावर को चेक किया गया और USA इंटरफेयर हुआ इन द गल्फ वॉर, एंड देन दे फाइट विद इराक एंड डिसआर्म इराक. इराक को असलहे से पाक किया गया, उनके जो असलहे के फैक्ट्रियाँ थी और जो उनके कारखाने थे उनको कंट्रोल किया गया, उनको वॉच किया गया और इराक के हथियार को तलफ कर दिया गया इन सच अ वे ताकि बैलेंस ऑफ पावर गल्फ रीजन में अगेन बैलेंस्ड हो जाए. So this was another example which was occurred in Gulf states to achieve balance of power and to decrease the power of stronger Iraq through disarmaments. तो इसी एफर्ट के जरिए आप किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री को जो कि उस रीजन के लिए खतरनाक बन चुका हो, आपकी उसकी पावर को ऐसे कम करें ताकि उनकी पावर बाकी स्टेट्स के बराबर हो जाए. So this disarmament effort will again achieve balance of power. The next technique for achieving balance of power is intervention and war. Intervention and war. Remember, they are not very healthy activities or techniques. In intervention and war, the state interfere in another state. It interfere in the internal affairs, and it again can interfere externally into the states and have a war with that state, in order that balance of power is achieved. So in intervention, the states intervene in the internal affair of another state for gaining some benefit and to protect its national interest. Remember, intervention may result in war. Example है इसकी, Italy and Germany intervened in Spanish Civil War. US intervened in Gulf War in 1991 against Iraq to free Kuwait. So balance of power में
एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ लड़ाई करता है, उसके साथ जंग करता है, उसके अंदर इंटरवीन करता है, इंटरवेंशन करता है, और जिसकी वजह से वो पावर बैलेंस करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल आपको पहले भी मैंने दे चुका हूं कि किस तरह यूएसए इंटरफेयर्ड इन इराक टू बैलेंस द पावर ऑफ इराक against the other states of the Gulf region. And similarly, Italy and Germany intervened in Spanish Civil War to bring balance of power in the region. Another example of intervention in war is Soviet Union intervened in North Korea, Hungary, and Eastern Europe to combat capitalistic ideology. सोवियत यूनियन ने अपनी पावर को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यूरोप में कैपिटलिज्म ज़्यादा पॉपुलर था और उनकी फोर्स और उनकी पावर इंक्रीज हो रही थी, इसी तरह सोवियत यूनियन ने अपनी पावर को बैलेंस करने के लिए उनकी पावर को बैलेंस करने के लिए क्या किया कि इट इंटरवीन्ड इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर स्टेट्स एंड इट control the states of the Eastern Europe so that the power of the capitalistic bloc is balanced by the communist bloc. And then Soviet Union intervened in Afghanistan, and as a result the US also start supporting Afghanistan to bring balance of power in the region and to combat the rising power of Soviet Union. So remember, this is one technique of achieving balance of power as well. Another technique for achieving balance of power is divide and rule technique. इस टेक्निक में the policy is used to weaken the power of competitor by dividing their territory or producing rift among people. तो divide और and rule में क्या तरीका है? वो कहते हैं तकसीम करो और फिर हुकूमत करो। अगर कोई स्टेट ज़्यादा पावरफुल है और जिसकी पावर को आपने कम करना है, तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप उस स्टेट को डिवाइड कर दें, उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें। तो उसको डिवाइड करने से आपने उसकी पावर को भी डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से अब वो स्टेट पावरफुल नहीं रहेगा और उसकी पावर को आपने बैलेंस कर दिया एज कंपेयर टू अनदर स्टेट्स। सो दिस इज द पॉलिसी दैट वाज फॉलोड बाय द ब्रिटिश एंड द यूरोपियन पावर्स इन देयर कॉलोनीज, कि वो उस बड़े खित्ते को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते और इस तरह वो उस स्टेट्स की पावर को कम कर देते। इसी तरह जो दूसरा इसका टेक्निक है, तो जो लोग हैं जो मुत्तहिद हैं, जिनमें इत्तेफाक है, अगर आपने उनमें नफाक पैदा कर लिया, अगर आपने उनमें डिसयूनिटी पैदा कर ली, उनको एक दूसरे से अलग कर लिया, उनमें रिफ्ट पैदा कर लिया, उनमें दुश्मनी पैदा कर ली, तो जब लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, उनके बीच में आपने गैप ज़्यादा कर लिया, जिसकी वजह से अब उन लोगों को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तो यही पॉलिसी ब्रिटिश की भी रही है कि उन्होंने इंडिया में आके जो इंडिया के लोग हैं उनको डिवाइड किया, और जिसकी वजह से दीज इंडियंस स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। एज अ रिजल्ट दे गेट डिसयूनाइटेड and the advantage was taken by the British, and they were controlling India through this policy of divide and rule. So we will divide, and then it would be easy for a power to rule that country, and this helps in maintaining rule over them. British used this policy in her colonies, जिस तरह बताया गया है। Soviet Union adopted this policy in Eastern Europe, जिसमें सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनमें डिवीजन पैदा की, उनको डिवाइड किया, और जिसकी वजह से उन्होंने पावर को बैलेंस किया। जिस तरह उन्होंने जर्मनी में ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को डिवाइड किया, इसी तरह कोरिया को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइड किया। इसी तरह वियतनाम को नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में डिवाइड किया, एंड इट वाज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट द पावर वाज बैलेंस्ड बिटवीन द टू पार्ट्स। One part was taken by the capitalistic bloc, and the second part was taken by or controlled by the Soviet Union or the communist bloc. France used this policy in Germany to maintain balance of power in Europe. So this is all the examples of divide and rule technique. The seventh technique for achieving and maintaining balance of power is the buffer state. What is buffer state?
Buffer state is a state that lies between two hostile states. जब दो नेबरिंग स्टेट्स हों जिनके बीच में ताल्लुकात कशीदा हों, उनके बीच में हालात अच्छे नहीं हों, और उसी का एक दूसरा नेबर है जहाँ पे दोनों इंटरवीन कर सकते हैं, जहाँ पे दोनों उस पर अटैक कर सकते हैं, तो बैलेंस ऑफ पावर कैसे अचीव हो? उसके ज़रिए ये जो दो स्टेट्स हैं ये आपस में ऐसा अग्रीमेंट कर लेते हैं कि जो थर्ड स्टेट है, सो दिस विल नॉट बी इंटरफेयर्ड. बोथ ऑफ दीज टू स्टेट्स will not interfere in the internal affairs of the other state, of the third state, so that balance of power is achieved. So this state, the third state, is called the buffer state. ये दोनों के बीच में एक न्यूट्रल स्टेट बन चुका है और दोनों बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर किसी एक ने भी उस स्टेट को कंट्रोल कर लिया, उसको फतह कर लिया, तो उसकी वजह से वो स्टेट स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, and this would disturb the balance of power. So how they would achieve balance of power? Through mutual agreement. So both these states decide that they will not interfere into the affairs of a third state to maintain the balance of power in the region. इसकी examples कौन सी हैं? The non-interference may be due to mutual interest in buffer state or to maintain balance of power. So why they are not interfering? Because both have some mutual interest. They may have some mutual benefit in that third state. तो दोनों के उस स्टेट में मफाद हैं, उसकी आज़ादी भी मफाद हो सकते हैं और बाकी दोनों के वहाँ पे तिजारती मकासद भी हो सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट मोटिव हो सकते हैं. लेकिन ये बात शर्त है कि दोनों स्टेट्स उस तीसरे स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेंगे और वो जो तीसरा स्टेट है वो अपनी आज़ादी को मेंटेन रखेगा. तो ऐसा स्टेट को फिर बफर स्टेट कहलाएंगे. एग्जाम्पल इसकी अफगानिस्तान की है कि अफगानिस्तान एक्टेड एज अ बफर स्टेट बिटवीन ब्रिटेन एंड रशिया ड्यूरिंग 19th एंड बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. हमें जिस तरह मालूम है कि जब बरतानिया बरसगीर में आया और उन्होंने बरसगीर के बहुत वसी व अरीज इलाके को अपने कब्जे में कर लिया, यहाँ तक कि वो शुमाली सरहद तक जा पहुँचे और उसके बाद अफगानिस्तान की सरहदें शुरू होती हैं. तो उस वक्त ये मुआहदा किया गया कि ब्रिटेन मज़ीद आगे नहीं आएगा और जो अफगानिस्तान की हैसियत है वो एक न्यूट्रल स्टेट की हैसियत से बरकरार रहेगा. एंड देयरफॉर नीदर ब्रिटेन नॉर रशिया वुड इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ अफगानिस्तान. As a result, Afghanistan will be maintaining its independence, and this was acting as a buffer state between Russia at that time and Britain in the India. और यही हमने देखा कि यही बफर स्टेट बरकरार रही है. But when in 1979 Russia violated this and it interfered in the Afghanistan affairs, so as a result balance of power was disturbed and therefore America was to come to in the region to achieve balance of power. इसी तरह दूसरी एग्जांपल राइनलैंड की है. राइनलैंड acted as a buffer state between France and Germany. तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो राइनलैंड का इलाका है, so this was acting as a buffer state. And similarly, during the Cold War, Canada acted as a buffer state between America and Soviet Union. So both of the superpowers, neither America nor Soviet Union, would interfere in the internal affairs of Canada. As a result, Canada would maintain its independence and would keep as a separate state. Although it was a neighboring state of America, it was not difficult for America to control Canada, but through the mutual agreement, Canada was declared as a buffer state, and therefore there was non-interference by the two superpowers in the affairs of Canada.